अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। So today we will be continuing with our series of lectures on O-Level Additional Mathematics Trigonometry. This is lecture number 5. मैंने इससे पहले 4 लेक्चर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। So in this video we will be discussing the graph of the trigonometric function y is equals to cos x. Okay, so the first thing that we need to do uh, before we start plotting is कि we need to decide कि हम x को किस रेंज में लेने वाले हैं. In this video I will be taking it from 0 से 360 degrees. Obviously x in degrees will be plotted on x-axis whereas cos x will be plotted on the y-axis. The reason being कि x is an independent variable और उसकी basis पर हम cos x निकाल रहे होते हैं. And again, just like we did in the with the graph of y is equals to sin x, हमने जिस तरह से इंटरवल्स दिए थे 90 डिग्री के, हम वही यहाँ पर भी लेने वाले हैं. x, this is cos x, 0, 90, 180, 270 and 360. Cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos 180 is -1, cos 270 is 0 and cos 360 is 1. On the basis of this, मैं यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ. -1, this is 1, this is 2, this is going to be 90, 180, 270 and 360. So cos 0 पे वैल्यू क्या आ रही थी? 1 आ रही थी. cos 90 was 0, cos 180 was -1, cos 270 was 0 and cos 360 was 1. So I can just sketch the graph. Right. So this is somewhat the shape of what the cos graph looks like. कुछ इस तरह का दिख रहा होता है. Right. And obviously this graph will then once again continue had I actually plotted it till let's say 720, या फिर अगर मैं -360 तक भी plot करता तो this graph would have then just repeated itself. Right. So वो चीज़ तो हमारे पास कंफर्म हो गई कि since the graph is repeating itself after every 360 degree, we can say that this graph too, just like sin x का graph, has a period of 360 degree. Period क्या होता था? Period was simply the number of degrees after which the एक cycle जो graph का होता है that repeats itself. और यहाँ पर this is one cycle and then this is obviously repeating itself after every 360 degrees, right? So the other thing that we can observe from this graph is that the maximum value of cos x is 1 and it occurs when x is equals to 0 degrees and when x is equals to 360 degrees. And the minimum value of cos x is -1 and it occurs when x is equals to 180 degrees. The other thing that we need to talk about is axis of the curve. हमने बात की थी that axis of the curve was a line that basically passes through the center of the curve. इस केस में भी again the axis of the curve is x-axis, या फिर वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है तो we can say that y is equals to 0 is the axis of the curve, right? And now what is the amplitude? Amplitude was simply the distance between the axis of the curve and the maximum point, या फिर the distance between the axis of the curve and the minimum point. और दोनों में ही आप देख सकते हैं the distance is 1. और हमने ये बात भी की थी last वीडियो में that the amplitude will always be positive. The reason being very simple कि it's a scalar quantity and scalar quantities
are not negative. So the next thing that we need to look is कि जाहिर सी बात है जिस तरह से हमने बात की थी कि साइन एक्स की एक जनरल इक्वेशन होती है साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की विच वाज y इज इक्वल्स टू a साइन bx प्लस c. बिल्कुल उसी तरीके से cos की भी एक जनरल इक्वेशन होती है and that is y is equals to a cos bx plus c, where the a represents the amplitude जो कि हमने देखा है which is the distance between the maximum or the minimum point from the axis of the curve. b से हमें क्या पता लग रहा होता है, हमें पीरियड पता लग रहा होता है. हम 360 को b से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास जो भी डिग्री आता है that is the period जिसके बाद the curve will actually repeat itself. And what is c? The c represents the axis of the curve, right? Okay, so now we can move on to the next part. Let's say I had been asked to sketch a graph of, let's say, y is equals to 3 cos x, right? अब जाहिर सी बात है आई एम बीइंग आस्क्ड टू स्केच अ ग्राफ और मेरे पास जो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है विच आई हैव ऑलरेडी स्केच्ड इज ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x. अब जाहिर सी बात है जो मेरे पास वैल्यूज आई थी हमने ये बात लास्ट वीडियो में भी की थी दैट व्हाट इज रियली हैपनिंग इज कि जो हमारे पास ग्राफ है ऑलरेडी उसके साथ बस एक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका क्या मतलब है, जो मेरे पास x कोऑर्डिनेट्स हैं दे विल रिमेन अनचेंज. जो मेरे पास x कोऑर्डिनेट्स थे विच वर 0, 90, 180, 270 एंड 360 दे विल रिमेन अनचेंज्ड. लेकिन इस 3 के आने से इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जो मेरे पास y एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स थे दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3. मेरे पास cos 0 के ऊपर 1 था, cos 90 के ऊपर 0 था, cos 180 के ऊपर -1 था, cos 270 के ऊपर 0 था एंड cos 360 के ऊपर 1 था. ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. तो मेरे पास 1 की जगह 3 आ जाएगा, 0 की जगह 0 रहेगा, 1 की जगह -3, 0 की जगह 0 एंड 1 की जगह 3. तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पर लेट्स से मैं नंबर्स लिख दूँ 2 and 3 एंड यहाँ पर भी -2 एंड -3, राइट. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ cos 0 के ऊपर जो 1 वैल्यू आ रही थी अब क्या आ रही है, 3 आ रही है. सिमिलरली cos 90 के ऊपर 0 ही रहा बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर स्टिल रिमेन्स 0. cos 180 के ऊपर जो -1 वैल्यू आ रही थी अब वो -3 हो रही है. cos 270 के ऊपर अगेन 0 ही रहेगा एंड cos 360 के ऊपर जो 1 आ रही थी दैट वाज नाउ गोइंग टू बी एट 3. तो व्हाट विल द ग्राफ लुक लाइक, द ग्राफ विल look like this. तो मेरे पास जो पहले ग्राफ था लेट्स से वो इस तरीके का था, तो द न्यू ग्राफ दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज लाइक दिस. इट इज मोर स्टीप, राइट. और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि द एक्सिस ऑफ द कर्व इज अगेन रिमेनिंग सेम, इट्स अनचेंज्ड. तो आप देख भी सकते हैं कि अगर लेट्स से मैं इस मैक्सिमम पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करूं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व तो इट वर्क्स आउट टू बी 3 एज वेल, which we also can see from the equation, right? So this is when the changes in amplitude take place. अब ये next part के अंदर we will be changing the value of b. Let's say अब again यहाँ पे मेरे पास जो ग्राफ already plotted है that is of y is equals to cos x. अब let's say मुझे वो plot करने को बोल देता है the graph of y is equals to cos 2x, राइट. सो अब देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन देख के ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस ग्राफ का y इज इक्वल्स टू cos x का पीरियड क्या रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल्स टू a cos bx प्लस c, राइट. तो यहाँ पर जो b की वैल्यू थी दैट वाज 1 और हमने देखा था कि हमें पीरियड ऑफ द ग्राफ कैसे पता लगता है, 360 डिवाइडेड बाय जो भी b की वैल्यू होती है
तो यहाँ पर तो 360 था और वो हम ग्राफ में भी देख सकते हैं दैट द ग्राफ विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 360। लेकिन y इज इक्वल्स टू cos 2x का इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2, तो 360 बीइंग डिवाइडेड बाय 2 मींस 180 डिग्री। इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा इसका पीरियड इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, यानी इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 180 डिग्रीज। और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इम्पैक्ट ये होने वाला है कि आप लोगों को याद होगा कि मेरे पास x cos x था और यहाँ पे लेट्स से मैं एक cos 2x का भी कॉलम बना दूँ, तो मेरे पास x 0 था, उसके ऊपर मेरी cos x की वैल्यू क्या आ रही थी? 1 आ रही थी। मेरे पास 90 था तो 0 आ रही थी, 180 था तो -1 थी, 270 था तो अगेन 0 थी, एंड 360 के ऊपर 1 आ रही थी। अब सॉरी cos 2x यहाँ पे नहीं आएगा, बट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? जाहिर सी बात है अगर इस पूरे ग्राफ को जो 360 पे वैल्यूज आ रही हैं इसको 180 डिग्री में फिनिश होना है, तो व्हाट विल हैपन इज के x कोऑर्डिनेट्स विल गेट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 90 डिग्रीज पे cos x की वैल्यू 0 आने के बजाय अब 45 डिग्रीज पर 0 आएगी, राइट? यानी कि यहाँ पे 45 डिग्रीज पे एक्चुअल में 0 आने वाला है। अगेन ये तो अनचेंज रहेगा बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज अगेन 0, तो यानी कि 0 डिग्रीज के ऊपर cos की वैल्यू वही 1 रहेगी। Instead of 180 degrees पे minimum point -1 आए, the minimum point will now happen at 90 degrees, which is here. And instead of 270 degrees पे 0 आने के, it will now happen at 135 degrees. And 360 degree पे 1 आने के बजाय what will happen is के 1 आएगा at 180 degrees, right? So now अब हम इसको स्केच करके देख लेते हैं ग्राफ, and this is what the graph will look like. और जाहिर सी बात है then the graph will again repeat itself like this. तो यानी कि this graph is basically completing itself within 180 degrees. और उसका impact क्या आ रहा है? उसका impact आ रहा है x coordinates के ऊपर, right? So basically the graph previously वो जो कि cos x का था that looked like this. ये जो cos 2x का है that basically finishes somewhere over here. So another graph can be accommodated in this. तो यहाँ पे दूसरा ग्राफ आ गया within that same 360 degrees, right? So this is what happens when the value of b changes, and the third thing that we will be talking about is going to be the vertical shift. अब let's say I've been यहाँ पर जो मेरे पास again graph है that is of y is equals to cos x, right? And now I have been asked to plot the graph of y is equals to cos x minus 1, right? अच्छा, हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन a cos bx प्लस c। तो यहाँ से जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो आई नो कि जो मेरे पास पहले था y इज इक्वल्स टू cos x, उसमें एक्सिस ऑफ द कर्व वाज एक्चुअली 0, और वही बात थी कि y इज इक्वल्स टू 0 वाज द एक्सिस ऑफ द कर्व। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दैट द एक्सिस ऑफ द कर्व इज गोइंग टू बी एट -1, तो यानी कि मैं यहाँ पर एक लाइन बना सकता हूँ at -1 to help me sketch the new graph. Right. So now I have a line at -1. The other thing is कि coordinates पे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए आप लोगों को याद होगा कि अगेन हमने x के अगेंस्ट cos x की प्लॉटिंग की थी 0, 90, 180, 270 एंड 360 के ऊपर, cos 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे 1, राइट? अब यहाँ पे हो क्या रहा है जब हम बात कर रहे हैं ऑफ cos x -1, राइट?
तो व्हाट इज रियली हैपनिंग इज कि हर वैल्यू से जो cos x की आई थी उससे एक -1 हो रहा है, यानी कि 1 की जगह मेरे पास cos x जब 0 होगा तो 1 की जगह मेरे पास क्या आंसर आएगा 0। 90 डिग्रीज के ऊपर 0 के बजाय आंसर क्या आएगा -1। 180 पे -1 की जगह आंसर क्या आएगा -2। 270 पे 0 की जगह -1 एंड 360 पे 1 की जगह 0। तो हर y की वैल्यू से बेसिकली -1 हो रहा है। तो व्हाट विल दिस न्यू ग्राफ लुक लाइक वो देख लेते हैं। And then at 90 it is going to be -1, at 180 it is going to be -2, at 270 it's going to be at -1, and at 360 it's going to be at 0. So the new graph will look like right. So आप लोग ये देख सकते हैं that the entire graph, all values of y are shifting downwards by how many points? By 1 point, right? Because यहाँ पे cos x -1 था। Let's say मेरे पास y is equals to cos x -2 given होता, तो क्या होता? Now the new axis of the curve would have been at -2, और cos x -2 की वैल्यू क्या आ रही होती? उसमें क्या हो रहा होता? जो cos x की वैल्यू थी उससे -2 हो जाता, यानी कि मेरे पास x is equals to 0 पे जो 1 था that will not just become 0, that will become -1, और जो मेरे पास 90 के ऊपर 0 आया था that will become -2, 180 के ऊपर जो -1 था that will become -3, 270 के ऊपर जो 0 था that will become -2, and 360 के ऊपर जो 1 था that will become -1, right? So what will the new graph of cos x -2 look like? Let me just use a different ink, right? यहाँ पे आएगा at 90 degrees it's going to be at -2, at 180 degree it's going to be at -3, at 270 it's going to be at -2, and at 360 it's going to be at -1, right? So this graph will further shift downwards, and this is what is happening. और इस शिफ्ट को हम ऑब्वियसली वर्टिकल शिफ्ट कह रहे होते हैं, बिकॉज अगेन ये भी, अब ये देखिए ओरिजिनल ग्राफ के मुकाबले कितना नीचे गया है, ये 2 पॉइंट्स नीचे गया है, और वो आप देख भी सकते हैं from the equation. Okay, so let's say I had been given a question, जहाँ let's just find, अगर मेरे पास कोई ग्राफ पेपर खाली है यहाँ पे, right? So I have this. Let's say I had been given a question, और वो क्वेश्चन क्या होता? दैट क्वेश्चन वुड हैव बीन कि देखिए यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ 2 cos 2x + 1, राइट? अब लेट्स से मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होता, तो हाउ वुड हैव डन दैट? अब मेरी हमेशा एडवाइस ये होती है कि आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड जाएं, यानी कि यू डील फर्स्ट विद A, then you deal with B, and then you deal with C. यानी कि you first change the amplitude, then you change the period, and then you look at the vertical axis. तो अब अगर लेट्स से मैं सबसे पहले cos x का ग्राफ प्लॉट कर लूँ, ताकि then I can 270 and 360 डिग्रीज, यहाँ पे मेरे पास +1 होता और यहाँ पे मेरे पास -1 होता, 90 पे 0 होता है, 180 पे it is -1, 270 पे 0 again, and 360 पे 1. तो cos x का ग्राफ किस तरीके का होता है, which we have seen like quite a few times in this video. तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है. So the first thing that I would do, जब मुझे 2 cos 2x + 1 का ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे पता है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है जो भी वैल्यू मैक्सिमम 1 थी दैट इज एक्चुअली बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो एक्चुअल में अब 2 पे होगी. The minimum point which was happening at -1 is now going to happen at -1 multiplied by 2 at -2. So let me just change the ink, right?
तो इसका क्या मतलब है, अब सबसे पहले मैं क्या किसका ग्राफ बनाने वाला हूँ, मैं 2 cos x का ग्राफ बनाने वाला हूँ। उसके बाद आई विल स्टार्ट एडिंग मोर थिंग्स टू इट। तो सबसे पहले 2 cos x का ग्राफ किस तरह का बनेगा, 2 cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। एट 180 इट विल बी एंड एट दिस विल बी बैक एट 2। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा जो कि अभी हमने देखा भी था, राइट। ये 2 cos x का बन गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं करूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में बनाने वाला हूं 2 cos 2x का ग्राफ। ये कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है कि भाई एवरी x कोऑर्डिनेट, यानी कि जो वैल्यू 90 पे आ रही थी अब वो वैल्यू किस पे आएगी, 45 पे आएगी। और जो वैल्यू मेरे पास 180 पे आ रही थी वो 90 पे आ रही होगी, जो 270 पे आ रही थी वो 135 पर आ रही होगी, राइट। तो दिस विल बी फेयरली सिंपल। Let's use another ink. Okay. और 180 पे मिनिमम वैल्यू आने के बजाय 90 पर मिनिमम वैल्यू आएगी, एंड जो 270 पर आ रही थी दैट विल कम एट 135, और जो 360 पे आ रही थी दैट विल कम बैक एट। तो दिस इज व्हाट द ग्राफ विल लुक लाइक। Right. So this is what the graph of 2x cos 2 cos 2x will look like, right? Now in the third step what I will do is कि मैं इस 2 cos 2x के ग्राफ में इस 1 को भी ऐड कर दूंगा, एंड दिस 1 मुझे पता है is going to do is a vertical shift, यानी कि the entire graph will shift up by 1 point। तो होने क्या वाला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू 2 पर है दैट विल नाउ बी फाउंड एट 3, एंड द मिनिमम वैल्यू जो -2 पे बन रही है वो -1 पे बन रही होगी। लेट्स यूज लेट्स से ऑरेंज। The maximum point is going to be at 3, 45 पे obviously it will hit the। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिकॉज मेरे पास एक्सिस ऑफ द कर्व चेंज हो रही है, तो this will be the new axis of curve at y is equals to 1, right? तो instead of x axis पे टच करने के it will be touching over this point, right? So this will be coming down like this, and यहाँ से ये ऊपर जाएगा by hitting this point, and then at 180 it's going to be back। तो अब जाहिर सी बात है this is a rough sketch, तो ओके। सो ये जो ऑरेंज से बना हुआ है दिस इज व्हाट द फाइनल ग्राफ इज गोइंग टू बी। ऑब्वियसली आई एम यूजिंग अ स्टाइलिश पेन तो इतना क्लीन नहीं बन पाया है, बट दिस इज गोइंग टू बी cos 2x प्लस 1। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए कि लेट्स से आपको स्केच करना है ग्राफ, पिछली वीडियो का देख लेते हैं 2 sin 3x minus 2, तो हमेशा आप लोग शुरू कहाँ से करेंगे, आप लोग शुरू करेंगे फ्रॉम A, then you will move to B, and then you will move to C, यानी कि you will first deal with the amplitude, that is going to be my advice, then you are going to deal with the value of B जिससे number period change होगा, and then you are going to deal with change in the axis of the curve। okay, so अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे चैनल कंटेंट से कनेक्टेड रहना है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।